Hello everyone, welcome back to Stopgap Solutions. This is Dr. Shilpa. So today in the series of current affairs, we will be covering Vision IAS monthly current affairs for April 2025. And this way we will continue the series with each month. Okay, so first topic in this is polity and governance. Okay, so first of all, under this separation of powers. So ये न्यूज़ में क्यों था? Because Vice President of India emphasized on the principle of separation of power and stated that in democracy, governance should only be executive. The government which is elected by the people and is accountable to them only. Okay, so Vice President emphasized, उन्होंने बोला कि separation of power बहुत ज़्यादा ज़रूरी है for the clear demarcation of responsibilities, जिससे कोई भी इंस्टीट्यूट है उसका ओवररीच ना हो. सो दिस इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द रिसेंट कंट्रोवर्सीज जिसमें आपका जुडिशियल ओवररीच एंड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर पावर्स दीज आर इंक्लूडेड. सो he stated that any incursion by the legislature, executive or judiciary in the domain of each other poses a challenge. अगर कोई भी एक दूसरे के decisions को overreach करने का कोशिश करता है तो it's like a challenge for each other, right? Idea behind the separation of powers. Separation of power means demarcation of authorities and duties. किन किन के बीच में into the three branches of government, that is executive, the legislature and the judiciary. What is executive? It enforces laws made or enacted by the legislature and is responsible for the administration of the government. जो जितने laws बनते हैं legislature उसके लिए responsible होता है laws बनाने के लिए, and executive वो part होता है जो आपके laws को enact करते हैं. Next is legislature. It makes laws, amends and replace old laws and controls, supervises and scrutinizes the activities of the executive. Now the third is judiciary, which is concerned with the administration of justice, interpretation of laws and is the guardian of the constitution. So basically ये जो part है interpretation of laws and guardian of the constitution, इसकी वजह से judiciary time to time जो legislature और executive है उसके powers को overreach करने का try करती है. Now origin, Aristotle for the first time classified under the functions of the government into three categories: deliberative, magisterial and judicial. However, French jurist Montesquieu is considered as the modern exponent of the theory of the separation of power. So modern theory, in his book The Spirit of the Laws 1748, he enunciated then explained his theory of the separation of powers. So exclusively principle dividing the government into the three structural organization: functional principle, delineation the boundaries of the organs and that one organ shall not perform the function of the other. कोई भी जो तीन organs है वो एक दूसरे के functions perform नहीं करेंगे. Check and balances principle, check should be made on each other by these organs to look after the function and judiciary duties performed are within the constitutional boundaries. अब एक दूसरे का functioning आप check कैसे करेंगे? हमारे पास एक constitution है, अगर वो constitution के अंडर में रह के हो रहा है then it is well and good enough. अगर constitution की boundaries के बाहर जा रहा है then they can tell each other. Now mutuality principle, creating concord not discord, cooperation not confrontation, engagement not estrangement. हमें किस किस प्रिंसिपल पे काम करना है? कॉन्कॉर्ड पे काम करना है, कॉपरेशन पे काम करना है एंड एंगेजमेंट पे काम करना है. Now in India, delicate balance, the Indian constitution is based on a delicate principle of limited separation of powers with sufficient differentiated functions of different organs and check and balances so that the one organ can not assert the function of the another. Next, functional of overlap. The Indian constitution does not expressly vest three kinds of power in three different organs and the organs have some overlapping domains. जैसे कि एकदम ही demarcated lines नहीं है over the functions of the three institutions. थोड़े थोड़े functions ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऊपर overlap करते हैं. For example, the president being the executive head is also empowered to exercise legislative powers as in promulgating ordinances. President for being said is the executive head of the government, लेकिन उनके पास power होता है
टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंसेस। बेसिकली ऑर्डिनेंसेस लाना हमारे प्रेसिडेंट के अंडर में है और ये काम होता है हमारे लेजिस्लेचर का। ओके, सो हियर वी सी द ओवरलैपिंग ऑफ द फंक्शंस। Next, legislature exercises judicial function in the removal of president and judges, breach of its privilege, etc. So basically अगर हमें किसी को remove करना है from the function, from the post, तो ये judicial का function होना चाहिए, लेकिन ये करते हैं हमारे यहाँ legislature. Next, the judiciary exercises legislative and executive power in issuing guidelines to executives and making certain legislative amendments. Many times we have seen कि जो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के पावर्स हैं उसको जुडिशरी एक्सरसाइज करती है, गाइडलाइंस देती है एंड आपको ऑर्डर करती है कि आपको इसके अकॉर्डिंग आपको लेजिस्लेचर अमेंडमेंट्स या लेजिस्लेचर फॉर्मेशन करना है। नाउ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सो द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट में भी आता है। अब इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है? जुडिशियल इंटरवेंशंस। द सुप्रीम कोर्ट थ्रू इट्स जजमेंट्स encroaches on the legislative domain. For instance, the Supreme Court ruled that the President must decide on state bills reserved by the governor for President election at within 3 months. ये एक्चुअली रिसेंटली हुआ है जहाँ पे जुडिशियल ने इंटरवेंशन किया कि जो प्रेसिडेंट के लिए जो हमारे गवर्नर कुछ बिल्स को अलग से रख लेते हैं फॉर द प्रेसिडेंट टू डिसाइड, इसके लिए प्रेसिडेंट को विद इन 3 months का टाइम फ्रेम सेट कर दिया गया। किसके द्वारा? जुडिशरी के द्वारा। नाउ लेजिस्लेटिव एनक्रोचमेंट, द लेजिस्लेचर इनेक्ट लॉज encroaching on the other domains like the National Judicial Appointment Commission NJAC Act, which included the Union Law Minister and 2 eminent persons in the committee. ओके, थर्ड इज एग्जीक्यूटिव ओवररीच। ये आपका एग्जांपल था जुडिशियल का, ये आपका लेजिस्लेटिव का। थर्ड है एग्जीक्यूटिव का। मैनी ट्राइब्यूनल्स हैव अ मेजॉरिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, नेगेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ऑल्सो फ्रीक्वेंट प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंसेस बाईपासेस द लेजिस्लेचर फॉर लॉ मेकिंग। ओके, सो इससे हमें क्या दिखता है? फॉर द कंक्लूजन, सेपरेशन ऑफ पावर्स एम टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड। किसी भी एक ऑर्गन के पास में बहुत ज़्यादा पावर ना कंसंट्रेट हो जाए, दैट्स वाई द सेपरेशन ऑफ पावर्स, सो दैट द फ्रीडम एंड लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल रिमेन सेफगार्डेड। However, organs of government cannot function in watertight compartments and they operate in mutual cooperation and respect so that one does not usurp the functions of the other. Thus, a broad separation of powers with some functional overlap and adequate checks and balances furthers the goal of democracy. So, Montesquieu, according to him, there would be an end of everything where the same man or same body, whether the nobles of the people, to exercise those 3 powers, that of enacting laws, that of executing, and that of executing public resolution, and of trying the cause of individual. So, this is the quote जो आप writing के time पे कहीं भी use कर सकते हैं। Okay, इसी से related है assent to the bills. Now, recently the Supreme Court, the state of Tamil Nadu versus the government of Tamil Nadu, issued direction to ensure the timely approval of the bills passed by state legislature. So between November 2020 and April 2023, the state legislature passed 13 bills. State legislature of Tamil Nadu which passed 13 bill, 13 bill उन्होंने पास किए। Of these 10 were either withheld or sent back to assembly by the governor without any communication, जिसमें से 10 को या तो विदहेल्ड कर लिया गया या फिर गवर्नर के पास से वापस से भेज दिया गया विदाउट एनी कम्युनिकेशन। व्हेन द असेंबली रीपास्ड देम विदाउट एनी मटेरियल चेंजेस, द गवर्नर रिजर्व देम फॉर द प्रेसिडेंट इंस्टेड ऑफ गिविंग असेंट। नाउ अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें क्लियरली इट इज़ मेंशन कि गवर्नर चाहे तो कुछ भी बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। इन रिस्पॉन्स, इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक रिट पिटीशन फाइल किया, चैलेंजेस द गवर्नर्स प्रोलॉन्ग्ड इनएक्शन ऑन इम्पॉर्टेंट बिल्स। कोर्ट हेल्ड द गवर्नर्स इनएक्शन रिजर्विंग द बिल आफ्टर रीपैसेज वाज लीगली इनवैलिड। देयरफॉर द प्रेसिडेंट एक्शंस ऑन दोज बिल्स वर आल्सो डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। नाउ हियर कम्स द जुडिशियल ओवररीच। और जुडिशरी ने क्या किया? आपके इनको इनवैलिड ही कर दिया कि जो भी आपने रीराउट किया है टू द प्रेसिडेंट ये इनवैलिड है। इसीलिए प्रेसिडेंट को भी उनको जल्दी से या तो उस पर कुछ एक्शन करे, वापस भेजें, अदरवाइज उसको नल एंड वॉइड करेंगे और जो बिल्स है उसको हम पास्ट
मान लेंगे कि वो पास हो चुके हैं, ठीक है। सो अंडर आर्टिकल 168 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर इज पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर दो नॉट अ मेंबर ऑफ इट्स हाउसेज फॉर अ बिल टू बिकम लॉ। इट मस्ट ईदर गेट द गवर्नर्स असेंट और इफ रिजर्व द प्रेसिडेंट असेंट, दोनों में से किसी का असेंट होना चाहिए, देन ओनली इट कंसिडर्ड पास। नाउ कोर्ट ने यहाँ पे किस चीज़ का कौन सा आर्टिकल यूज़ किया? सी एवरीथिंग विच इज़ बीइंग डन, चाहे वो हमारे तीनों ऑर्गन्स करे, लेकिन वो होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर से। तो आर्टिकल 42 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट सेज दैट द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज इनहेरेंट पावर अंडर दिस आर्टिकल which empower Supreme Court to pass a decree order necessary for doing complete justice. So on the basis, on the name of the complete justice under Article 142, Supreme Court can exercise any amount of power. Okay, constitutional provisions regarding assent to the state bill. सबसे पहले क्या होगा, गवर्नर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट बिल के लिए, आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टेट लेजिस्लेचर एक बिल पास करता है, गवर्नर इसमें से कोई भी एक एक्शन ले सकता है, वन ऑफ दिस 4 एक्शंस। या तो वो आपको असेंट दे दे, देन इट बिकम्स लॉ। विद होल्ड असेंट, बिल रिजेक्ट हो जाएगा। रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन, मनी बिल्स में ये रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं जा सकता है। अगर रिकन्सिडरेशन के लिए गया तो आपका लेजिस्लेचर इसको पास कर सकता है विद और विदाउट चेंजेस। ये फिर आपका गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर को असेंट देना ही पड़ेगा, मस्ट गिव असेंट। या फोर्थ ऑप्शन में गवर्नर क्या कर सकते हैं, इनको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। और इस पे माइंड करने का है कि इसमें कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है गवर्नर के ऊपर, गवर्नर क्या मे डू दिस एज सून एज पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है जब गवर्नर कोई भी बिल को रिजर्व कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 201। रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट, टेक वन ऑफ द 3 एक्शंस, या तो असेंट दे दें या विद होल्ड असेंट कर ले तो बिल रिजेक्ट हो जाएगा। रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन, इसमें भी नॉट फॉर मनी बिल्स। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप रिकन्सिडरेशन के लिए दे सकते हैं। लेजिस्लेचर मस्ट कंसिडर रिकन्सिडर एंड पास विद इन 6 months। देन प्रेसिडेंट मेक द फाइनल डिसीजन, अगर उनको असेंट देना है या असेंट को रोकना है, ग्रांट और विद होल्ड। की डिफरेंस क्या है? अनलाइक गवर्नर, प्रेसिडेंट इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू गिव असेंट टू रिकन्सिडर्ड बिल। उनको कोई ऊपर उनका ऑब्लिगेशन नहीं है, गवर्नर के ऊपर है लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ओके, सो इस जजमेंट का की हाइलाइट्स हम देखते हैं। तो इनएक्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अकॉर्डिंग टू द जुडिशरी, डिस्पाइट देयर बीइंग अ नो प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, देयर इज नो पॉकेट और एब्सोल्यूट वीटो अवेलेबल टू द गवर्नर और द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 200 और 201 रिस्पेक्टिवली। तो जुडिशरी का कहना है कि अगर कोई टाइम लिमिट नहीं भी दिया गया है तो ऐसा कोई पॉकेट या एब्सोल्यूट वीटो अवेलेबल नहीं है गवर्नर के पास या प्रेसिडेंट के पास अंडर आर्टिकल 200 और 201 कि वो उसको परमानेंटली रख के बैठ जाएं और उस पर कोई एक्शन ही ना ले। इन केस द गवर्नर प्रेसिडेंट एग्जिबिट्स इन एक्शन, द स्टेट गवर्नमेंट कुड सीक अ रिट ऑफ मैंडेमस फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट ऐसा कुछ कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट जाके रिट लगा सकते हैं। A writ of mandamus is an order from the court to a government official to properly fulfill their official duties or correct an abuse of discretion। तो ये writ of mandamus क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। गवर्नर can't reserve a re-enacted bill for president assent। गवर्नर किसी भी ऐसे बिल को प्रेसिडेंट असेंट के लिए रिजर्व नहीं कर सकते जो री इनेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। The bill can be reserved for the president assent in the first instance itself. If a governor decides to withhold assent for the bill, then he must mandatorily send it back to the state assembly। अगर उन्होंने सोच रखा है कि उसको withhold करना ही है assent को, तो उनको तुरंत वापस स्टेट असेंबली को वापस भेजा जाना चाहिए। When the assembly re-enacts the bill, the governor cannot reserve it for the president। The only exception to this general rule is when the bill presented in the second round is materially different from the one presented to the governor in the first instance। ठीक है, बेसिकली कोर्ट अभी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने के पास में गवर्नर के पास में कोई बिल आता है तो फर्स्ट इंस्टेंस में ही अगर आपको लगता है कि प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए तो वो चला जाए, अदरवाइज वो दोबारा से जब स्टेट असेंबली के पास गया है फिर से आपके पास आया है, उस केस में आप उस प्रेसिडेंट के पास में उस बिल को नहीं भेजेंगे। प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन फॉर असेंट ऑफ बिल्स, दीज टाइम लिमिट्स
are not amendments to the constitution but judicial standards to ensure timely action and avoid arbitrariness. In this case कोर्ट खुद मान रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं, हम एक टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करके हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इंश्योर कर रहे हैं कि टाइमली एक्शन होना चाहिए. द कोर्ट इंट्रोड्यूस टाइम लिमिट्स टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर्स. टाइमलाइन सेट बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर स्टेट बिल: 1 month, 3 months, विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस, अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस. इस पे गिव और विदहोल्ड असेंट, रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. 1 month, देन असेंट टू बिल रिकंसिडर्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. अब इस पे आते हैं तो रिटर्निंग बिल फॉर रिकंसिडरेशन विद द मैसेज, रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट मस्ट डिसाइड ऑन बिल्स रिजर्व बाय गवर्नर, एनी डिले टू बी जस्टिफाइड एंड कम्युनिकेटेड टू द स्टेट्स. Governor lacks absolute discretion under the Article 200. Article 1631 provide for the Council of Ministers to aid and advise the governor except in situations where the governor is constitutionally required to act on his or her discretion. So under Article 200, the governor does not possess any discretion in the exercise of his function and has to mandatorily abide by the advice tendered by the COM. एक्सेप्शन क्या हो सकते हैं इसमें जब गवर्नर अपना यूज कर सकता है डिस्क्रिशन? सेकेंड प्रोविजन टू आर्टिकल 200, इट इज स्टेट बिल्स दैट वुड डेरोगेट द पावर ऑफ द हाई कोर्ट मस्ट बी रिजर्व्ड. अगर हाई कोर्ट की पावर को डेरोगेट करने के लिए कोई बिल आता है तो उसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना ही है. स्टेट बिल विच विल नॉट बी कम इफेक्टिव विदाउट असेंट ऑफ प्रेसिडेंट. कौन कौन से ऐसे बिल है जिसपे प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए ही? बिल्स इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, money bills or financial bills passed by state legislature to which special provisions of Article 207 apply during a financial emergency. Bill relating to subject enumerated in the concurrent list. Bills relating to restriction on interstate trade, commerce and intercourses. State bills which require assent of the President to secure immunity from Article 14 and 19 and Article 31A, Article 31C. ठीक है, अगर ये सारा आपका है तो प्रिंसिपल के प्रेसिडेंट के पास में ये बिल जाएगा ही जाएगा बिफोर पासिंग फ्रॉम द असेंबली. नाउ डिस्क्रिशनरी पावर्स अंडर आर्टिकल 200 इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू. ग्रांट ऑफ असेंट बाय द गवर्नर और द प्रेसिडेंट यूजुअली टेकन अपॉन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मे नॉट बी जस्टिसिएबल. However, withholding assent or reserving a bill using governor's discretion can be challenged in the court. ऐसा नहीं है कि आप unnecessary या कुछ भी ऐसे उस पर arbitrary decision ले सकते हैं, ये challenge किया जा सकता है कोर्ट में. If the governor acts against the advice of the state council and reserve a bill for the president, the state governor can challenge it in high court or the supreme court. If the president then withholds assent, that action can also be challenged in the supreme court. President should consult the Supreme Court on bills reserved for unconstitutionality. If the governor reserves a bill for the president assent due to concerns of the unconstitutionality, इस केस में क्या होगा? The president should seek the Supreme Court opinion. आर्टिकल 143 होता है जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से उनका ओपिनियन ले सकते हैं. वो मैंडेटरी नहीं होता, उनको मानना है ऐसा ज़रूरी नहीं है. इट इज़ जस्ट द एडवाइजरी ओपिनियंस. द प्रेसिडेंट मे disagree with the court's opinion only for valid policy reason and must provide clear justification for doing so. Such consultation is important as governors cannot refer such matter to court. The Supreme Court is the final authority on interpreting the constitution and laws. The court's opinion under Article 143 holds strong persuasive value and should generally be followed by the both parliament and president. So basically इस पूरे ही conversation में ये आता है कि किसी मैटर को बहुत ज़्यादा खींच लिया जाता है, बहुत अननेसेसरी डिले किया जाता है बाय द गवर्नर और बाय द प्रेसिडेंट. तो द जजेस, द जुडिशरी इज ट्राइंग टू मेक एन ओवर रीच बाय सेइंग दैट आपके पास में ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है. इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसका अननेसेसरी मिसयूज़ करेंगे. एक टाइम फ्रेम के अंदर आपको उस पर अपना या तो एसेंट देना होगा या क्लियरली डिनाई करना होगा. ओके, नाउ स्टेट्स डिमांड फॉर ऑटोनॉमी. इस पे सेकेंड थर्ड आपका टॉपिक है स्टेट डिमांड फॉर ऑटोनॉमी.
Why is it news? Because the Tamil Nadu government would form a high-level committee to suggest ways to strengthen state autonomy and federalism. The committee will be headed by the Supreme Court Judge Justice Kurian Joseph. एक हाई लेवल कमेटी बनाया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने टू जो सजेस्ट करेंगे कि हमारे स्टेट को ऑटोनॉमी ज़्यादा मिलना चाहिए एंड फेडरलिज्म में होना चाहिए. नेक्स्ट, इसको हेड कौन करेगा? कुरियन जोसेफ. मैंडेट है कमेटी का रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल एंड पॉलिसी एस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, सजेस्ट वेज टू रीस्टोर पावर शिफ्टेड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट. जो लिस्ट होती है उसमें जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें से जो भी लिस्ट में से टॉपिक्स हैं उसको हम स्टेट लिस्ट में डाल सकते हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे. रिकमेंड मेजर्स टू हेल्प स्टेट्स ओवरकम एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, प्रपोज रिफॉर्म्स फॉर ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी विदाउट अफेक्टिंग नेशनल यूनिटी, revisit recommendation of the Rajamannar committee and similar reports, consider current political, social and economic conditions. So the committee is expected to submit, ये कब तक सबमिट करना है इनका interim report? जनवरी 2026 तक, और final reports within 2 years. Tamil Nadu has made the committee claiming erosions of the state rights and negligence of the fact that India is a union of states, not a unitary state. Federal schemes of the Indian Constitution. India is a union of states with the states lacking the right to secede from the union. एक यूनियन ऑफ स्टेट है लेकिन उसके पास में यूनियन से सिसीड होने का कोई राइट नहीं है, आप अलग नहीं हो सकते. There are common institutions and instruments between the union and the state, such as single constitution, single citizenship है, common all India services है, common election commission है, and single unified judiciary है. Division of legislative powers. Article 246 of the Constitution confers legislative powers on the Parliament and the state legislature on the subject enumerated in the 7th schedule. ठीक है. Union list consisting of 97 entries, state list consisting of 66 entries, concurrent list consisting of 47 entries. ठीक है. So this is not the first time basically जब ऐसे कोई कमेटी या ऐसा कोई डिमांड हुआ है स्टेट से. इससे पहले भी ऐसे कमेटी और उनके रिकमेंडेशंस आ चुके हैं. तो वी कैन सी फ्यू ऑफ देम. सबसे पहले राजामन्नार कमेटी 1969 में बनी थी. अपॉइंटेड बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट, इट रिकमेंडेड फॉर हाई पावर कमीशन टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 3 लिस्ट. आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन 1973 में डिमांडेड सेंटर्स पावर टू बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू डिफेंस तक, फॉरेन अफेयर्स तक, कम्युनिकेशन, करेंसी एक्सेट्रा, विद ऑल अदर पावर्स वेस्टेड इन द स्टेट. वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम हुआ था 1977 में, which demanded the removal of Article 356, which is basically President rule, and the inclusion of the word federal in the constitution. All right, so तो ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है which is about federalism or is it being quasi-federal. So constitution envisages a strong center and give it more power than the state. जब भी हम constitution पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिससे वी कैन क्लियरली आइडेंटिफाई कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल इन नेचर है बट वो सेंटर को ज़्यादा पावर देता है. इंडियन फेडरलिज्म फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिससे आपके सेंटर को ज़्यादा पावर मिलती है. दैट इज आर्टिकल 248, रेजिडुअल पावर्स रेस्ट विद द पार्लियामेंट. आर्टिकल 249, लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट फॉर नेशनल इंटरेस्ट. आर्टिकल 250, सेंटर कैन लेजिस्लेट ड्यूरिंग इमरजेंसीज. Article 252, laws for states with their consent. Article 253, international treaties override state powers. Article 254, union law prevails in case of conflict. So Article 256, 257, 365, center can direct states and enforce through president rule. So basically why India adopted a centralized federalism? Reason क्या था इसका? A strong center was envisaged to safeguard unity and integrity of India because partition से हम लोग निकल के आए थे and there is always a chance कि एक ऐसे वाले एटमॉस्फेयर में कोई भी स्टेट या कोई भी ऐसा जगह, कोई भी ऐसा प्रांत कोई भी डिक्लेयर कर दे कि नहीं हम तो अलग हैं, वी आर सेपरेट स्टेट और सेपरेट नेशन. इससे बचने के लिए सेफगार्ड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड डेवलपमेंट. नाउ वी हैव डिफरेंट स्टेट्स, तो उसमें कुछ स्टेट्स रिच हैं, कुछ स्टेट पुअर हैं. अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं होगा तो हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे.
Now, promoting core constitutional values. Indian Constitution aims to build diverse, pluralistic, multicultural federal society to be achieved by promoting the principle of justice, parliamentary democracy, liberty. और ये सब हो कैसे सकता है? अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, इन दैट केस ओनली. नेक्स्ट इज प्रमोटिंग यूनिफॉर्मिटी. अभी वी हैव स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो जो भी लॉज सेट होते हैं दैट आर यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स, और उनको एक साथ पूरा कंट्री में हमको इनेक्ट करना होता है. इफ़ वी डोंट हैव दैट स्ट्रॉन्ग सेंटर विद अस, वी विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट. However, over the years, many states like Tamil Nadu have alleged strong domination of the center, not only on general policies but also in the spheres which exclusively belong to the state, drastically affecting the autonomy of the states. Key issues highlighting the erosion of the states. अब states को क्या क्या problem है? Central interference in subject under the state list. जो भी state list के subject है उसमें center का interference जब बहुत ज़्यादा हो जाता है. Southern state challenged the UGC draft regulations on the appointment and promotion of university teachers and vice chancellors that diminishes the autonomy of the state universities. Tamil Nadu opposed the national eligibility cum entrance test NEET for entry to medical colleges imposed by the centre. Through Constitution 42nd Amendment Act 1976, following 5 subjects were moved from state list to concurrent list. जो पहले state list में होते थे, अभी वो concurrent list में है. स्टेट लिस्ट में होंगे तो सिर्फ स्टेट उस पर रूल या लॉ पास कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में होगा तो दोनों ही कर सकते हैं. नाउ एजुकेशन इज वन ऑफ देम, फॉरेस्ट इज सेकेंड, वे एंड मेजर्स थर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. सेंट्रलाइजेशन ऑफ फिजिकल पावर्स. लिमिटेड टैक्सेशन पावर्स अंडर GST, डिलेज इन टैक्स डिवोल्यूशन एंड कट्स इन द ग्रांट्स इन एड. The grants in aid to states declined in absolute amount from कितना था 1.95 लाख करोड़ 2015-16 में, वहाँ से कम होके कितना हो गया 1.65 लाख करोड़ in 23 and 24. That's why they are suggesting कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, जो हमारे पास पहले था वही पावर्स हमको वापस दीजिए. यूनिफॉर्म पॉलिसीज इग्नोरिंग स्टेट डाइवर्सिटीज़. एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बना दी जाती है और ये फैक्ट इग्नोर कर देते हैं कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनका कल्चर डिफरेंट है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. सो दैट वे तमिलनाडु अपोजेस द 3 लैंग्वेज पॉलिसी डिमांड्स, फियरिंग डेंजर्स टू इट्स तमिल आइडेंटिटी. वीक इंस्टीट्यूशनल चेक्स. प्लानिंग कमीशन जो अभी नीति आयोग है, क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, लैक्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी. गवर्नर्स डिलेज इन असेप्टिंग टू स्टेट लॉज, जैसा कि अभी हमने देखा तमिलनाडु के केस में, रेज कंसर्न्स अंडर आर्टिकल 200. इंक्रीजिंग इंस्टेंसेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन, द इम्प्रॉपर यूज ऑफ असेंटिंग पावर्स टू द गवर्नर इन तमिलनाडु अंडर आर्टिकल 200 रिसेंटली ब्रॉट टू द लाइट ऑफ द इंस्टेंस ऑफ सेंट्रलाइजेशन. ऐसा ही कुछ वेस्ट बंगाल के केस में. वेस्ट बंगाल अपोज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI का इन्वेस्टिगेशन विदाउट द स्टेट कंसेंट. उन्होंने इस चीज़ को क्या किया, अपोज किया. ठीक है. की इनिशिएटिव टू इम्प्रूव सेंट्रल स्टेट रिलेशन. अब प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे हैं, वी आर सीइंग दैट, लेकिन ऐसे कौन से इनिशिएटिव है जिसको ठीक करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए लिए गए हैं. दैट इज फर्स्ट इंटर स्टेट काउंसिल, सेटअप अंडर आर्टिकल 263 टू प्रमोट कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. रिप्लेसमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग बनाया गया विच प्रमोट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विद मोर स्टेट पार्टिसिपेशन. टैक्स डिवोल्यूशन इंक्रीज किया गया. 14th फाइनेंशियल कमीशन रेज्ड स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस. पहले कितना था 32%, अभी है 42%. GST काउंसिल बनाया गया, अ जॉइंट फोरम अंडर आर्टिकल 279A विद मेंबर्स फ्रॉम बोथ स्टेट्स एंड सेंटर टू डिसाइड GST पॉलिसीज. फ्यूअर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. CSS reduced from 130 to 75, aiming for 50, allowing more flexibility for states. Decentralization strengthened. 73rd and 74th अमेंडमेंट जिसने पावर दिया पंचायत को और म्यूनिसिपैलिटीज़ को, जिससे क्या हुआ, हमारा थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ. ओके, वेज फॉर इफेक्टिवली एड्रेसिंग द डिमांड फॉर स्टेट अनॉटमी. अभी जो भी स्टेट अनॉटमी के लिए डिमांड आ रही है, हम उसको इफेक्टिवली एड्रेस कैसे कर सकते हैं. इम्प्लीमेंटिंग सरकारिया कमीशन 1983 की रिकमेंडेशन. रेजिडुअरी पावर्स, शिफ्ट ऑल रेजिडुअरी पावर्स एक्सेप्ट टैक्सेशन टू द कॉन्करेंट लिस्ट. अभी जो रेजिडुअरी पावर्स हैं जो हमारे स्टेट जो सेंटर के पास हैं,
उसको आप शिफ्ट कर दीजिए कॉन्करेंट लिस्ट में, लेकिन टैक्सेशन हटा के। कंसल्टेशन बिफोर लेजिस्लेशन, यूनियन मस्ट कंसल्ट स्टेट्स बिफोर लेजिस्लेशन ऑन कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स। मिनिमल इंटरफेरेंस, यूनियन लॉज ऐसे बनाने चाहिए कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स पे जिसका यूनिफॉर्मिटी ओनली ऑन अ बेसिक ऑफ नेशनल इश्यूज, स्टेट शुड हैव हैंडल लोकल डिटेल्स। जो स्टेट्स को जो पता है कि हमारी स्टेट के ये पर्टिकुलर लोकल्स की ये डिटेल्स हैं, ये उनकी नीड्स हैं, ये डिमांड्स हैं, तो वो स्टेट ही हैंडल करे, उसमें अननेसेसरी सेंटर का इंटरफेरेंस ना रहे। Promoting equitable development, as recommended by the Ponchi Commission 2007, increase financial transfer to underdeveloped states, focus on boosting physical and human infrastructure, facilitate institutional dialogue, use interstate council as for both collective and individual state consultation। किसने बोला था? वेंकट चलैया कमीशन ने, ठीक है। इनहेंसिंग कंसेंसस थ्रू की इंस्टीट्यूशन, प्रमोट कोऑर्डिनेशन एंड पॉलिसी कंसेंसस थ्रू इंटर स्टेट काउंसिल, जीएसटी काउंसिल जैसे कि नीति आयोग एंड अदर कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म्स। नाउ इन कंक्लूजन ऑफ ऑल द टॉपिक, द डिमांड फॉर ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी stems not only from a perceived erosion of the constitutional powers but also from deeper issues like the rise of regional parties and even regional development and identity based politics। सी, केवल ये रीज़न नहीं है क्योंकि स्टेट ऑटोनॉमी ज़्यादा डिमांड करती हैं, उसका सिर्फ ये रीज़न तो है नहीं कि इरोजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हो रहा है, उसके कुछ लोकलाइज रीज़न भी होते हैं, कुछ डीपर रीजन्स भी होते हैं, जैसे कि रीजनल पार्टी जो बढ़ती है, अनइवन रीजनल डेवलपमेंट होता है, या फिर जब भी लोग आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। ओके, एज अनुदराय सेड इन 1967, through mutual goodwill and understanding we should forge a fraternal and beneficial nexus. A balanced fraternal federal structure must respect both national unity and regional diversity. See, because India is a vast nation with different diversical states, तो ये प्रॉब्लम तो now and then आता ही रहेगा, आता रहता है, but we have to deal it with a little bit of more maturity. Center should not extend unnecessary interference, and state should understand that okay, you have the right to do the to take the autonomical liberty to you, but you are a state under India, under nation. Okay, so next topic here is 5 years of Swamitva scheme. Why is the news? The Swamitva, which is survey of villages and mapping with improvised technology in village areas, इसने अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं। लॉन्च हुआ था 2020 में, इम्प्लीमेंटेड बाय द efforts of Ministry of Panchayati Raj, State Revenue Department, State Panchayati Raj Department and Survey of India. Now key technology partner है इसका Survey of India and the National Informatics Center. Major components: establishment of continuously operating reference stations, established ground control points for accurate geo-referencing and land demarcation. Drone mapping हुआ इसमें, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन इनिशिएटिव्स लिया गया, एंड ग्राम मानचित्र एनहेंसमेंट, दैट इज डिजिटल स्पेशल डेटा फ्रॉम ड्रोन सर्वेज पावर्स एनालिटिकल टूल्स फॉर ग्राम पंचायत। अब ये तो इसके कंपोनेंट्स थे। मेजरली इसने ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्कीम का? इट वॉज द क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स फॉर रूरल प्लानिंग एंड रिड्यूस प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स। Second, to bring financial stability to the citizens in rural India by enabling them to use their property as a financial asset for taking loans and other financial benefits. Third is determination of property taxes, which would accrue the GPs directly to the states where it is developed or else add to the state exchequer. Next is creation of survey infrastructure and that GIS maps that can be leveraged by any department for their use, and to support in preparation of better quality gram panchayat development plan by making use of GIS maps. So basically technology को include करना है। Now significance क्या रहा इस स्कीम का? Legal empowerment and dispute resolution. The scheme provide legal recognition of property ownership in rural areas. Economic transformation through financial inclusion. Next is governance resolution and resource optimization. Villages like Ikatpur, Monjwari, Maharashtra में have experienced increased own resource revenue through updated property records, while Wilkisganj MP Gram Panchayat transitioned from imprecise hand-drawn maps to data-driven spatial planning. Next is technological innovation in rural development. Next is holistic rural transformation and planning.
स्टेट्स लाइक हरियाणा, उत्तराखंड, जिन्होंने अचीव किया है 100% कंप्लीशन इन बोथ ड्रोन सर्वेज एंड प्रॉपर्टी कार्ड प्रिपरेशंस। ओके, चैलेंजेस क्या आया इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए? अनक्लियर लीगल वैलिडिटी ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स। Property cards may not be recognized as conclusive proof of ownership by financial institution. It needs for state to enlist property cards as documents requiring stamp duty. ठीक है, वेरिएशंस इन स्टेट लैंड लॉज एंड रिकॉर्ड कीपिंग प्रैक्टिसेस। अलग अलग स्टेट में जो लैंड लॉज है वो बिल्कुल ही अलग हैं, वेरिएशंस है उसके अंडर में, और रिकॉर्ड कीपिंग प्रैक्टिसेस भी दूसरी हैं, डिफरेंट हैं। लिमिटेड प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी, इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, and then data management and compliance challenges। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है इसका, हम क्या कर सकते हैं टू टैकल दीज चैलेंजेस? स्ट्रेंथन लीगल फ्रेमवर्क। सो जैसे कि जो प्रॉब्लम है उसी पे हमको 1 by 1 काम करना है। तो लीगल फ्रेमवर्क का अगर प्रॉब्लम है तो लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करेंगे। रिकॉर्ड कीपिंग का प्रॉब्लम है तो स्टैंडर्डाइज रिकॉर्ड कीपिंग। लोकल गवर्नेंस जो है उसको ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। प्रोटेक्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, एनहेंस डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लॉन्ग टर्म वैकेंसी है सिंस 2019 टू द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। द ऑफिस इमर्ज्ड इन 1921 अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। Sachidanand Sinha first held this office in the Central Legislative Assembly. M.A. Iyengar became the first elected DS post-independence. Article 93 provides that Lok Sabha as soon as may be choose 2 members of the House to be Speaker and DS. As per the long-standing convention, the post of DS has been offered to the opposition. रेजिग्नेशन और रिमूवल इसका है। आर्टिकल 94 डील्स विद द वेकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल। स्पीकर में रिजाइन बाय सबमिटिंग अ रेजिग्नेशन टू द डीएस एंड वाइस वर्सा। ये लोग आपस में दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं रेजिग्नेशन। ड्यूटीज हैं एज पर आर्टिकल 95, डेप्यूटी स्पीकर परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ स्पीकर इन केस ऑफ वैकेंसी, एब्सेंस एंड अदर्स। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव है। इट इज नॉट मियरली सेरेमोनियल एज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, इट ऑन इक्वल फूटिंग विद द स्पीकर। Essential for continuity, stability and institutionally balance and legislative responsibilities. DS chair key sessions, leads committees and manages sensitive database requiring neutrality and authority. Issues क्या है वैकेंसी को लेके? Centralization of procedural power within the speaker, disregard for constitutional mandate and may sideline to the politics of inclusivity and consensus. And what is the conclusion? A specific deadline, that is 60 days for the first sitting of the new Lok Sabha, or a statutory mechanism could be introduced to ensure appointment within a time frame. ये करना चाहिए, एक स्पेसिफिक डेडलाइन आप क्रिएट कर दीजिए, 60 डेज 90 डेज व्हाट्सोएवर, जिससे कि वो जो सीट है अभी तक जो वेकेंट है उसको फिल किया जा सके। इनेक्शन बाय स्पीकर्स ऑन डिफेक्शन पिटिशंस। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कंडेम्ड प्रोलॉन्ग्ड इनेक्शन बाय स्पीकर ऑन डिफेक्शन पिटिशंस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्पीकर कुड नॉट यूज हिज indecision to defeat the worthy objective of the 10th schedule, anti-defection law of the constitution. Question of law in front of Supreme Court: can constitutional court direct speakers acting as a quasi-judicial tribunals to decide anti-defection disqualification petitioners within a specific time frame? Supreme Court ने ऑब्जर्व किया court's power over speakers in action. The Supreme Court stated that it is not powerless if speaker remains decisive. अगर स्पीकर कुछ डिसाइड नहीं करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन के ऊपर तो कोर्ट पावरलेस नहीं है. कोर्ट्स राइट इज टू सेट अ रीजनेबल टाइम फ्रेम. वाइल कोर्ट्स कैन नॉट डिक्टेट द आउटकम ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन बट दे कैन डायरेक्ट द स्पीकर टू डिसाइड विद इन अ रीजनेबल पीरियड. जैसे कि कायशाम मंगल चंद्र सिंह वर्सेस स्पीकर मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली 2022 में हुआ था. अगर स्पीकर फेल करता है एक्ट करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट अपना जो आर्टिकल है अंडर आर्टिकल 142 उसको इन्वोक कर सकते हैं एंड कैन टेल द स्पीकर कि आप इस टाइम फ्रेम के अंदर अपना डिसीजन ले लीजिए. अदर सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन टू
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं हम स्पीकर के डिसीजन के ऊपर, इम्पार्शियलिटी ऑफ द स्पीकर, जैसा कि केस हमारा था रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में, एंड इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन केसेस, केस कर्नाटका एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन केस 2020 में। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट एंटी डिफेक्शन लॉ। The concept is introduced through 52nd Amendment Act in 1985, adding the 10th schedule to the Constitution to prevent political defections. Purpose इसका था ensure stability under legislature by preventing arbitrary party switch. कोई भी अपने मन से कभी किसी पार्टी में स्विच कर रहे हैं, कभी किसी पार्टी में स्विच कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ। ग्राउंड्स क्या थे? वॉलेंटरी गिविंग अप पार्टी मेंबरशिप, डिफाइंग पार्टी व्हिप ड्यूरिंग वोटिंग। अब ये लेके क्यों आए गए थे? क्योंकि लोग अपने मन से पार्टी के जो व्हिप होता है, जो पार्टी व्हिप करती है, उसको डिफाई कर रहे थे वोटिंग के टाइम पे। ना रोल ऑफ स्पीकर और चेयरपर्सन, इट एक्ट्स एज अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, डिसाइड्स ऑन डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस, फाइनल आर्बिट्रेटर इन द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस। अब ये डिसाइड कौन करता है कि डिस्क्वालिफिकेशन होना है कि नहीं होना है? इज इन द हैंड्स ऑफ द स्पीकर और चेयरपर्सन। ठीक है, नेक्स्ट इज इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025. सो द बिल इज पास बाय द पार्लियामेंट. की हाईलाइट्स ऑफ द बिल: द ऑब्जेक्टिव इज टू मॉडर्नाइज इमिग्रेशन लॉज, enhance national security and improve coordination among immigration authorities. बिल्स क्या क्या रिपीट करता है? पासपोर्ट एक्ट 1920 को, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्ट 1939 को, फॉरेनर्स एक्ट 1946 को एंड इमिग्रेशन एक्ट 2000 को. Immigration regulations, a Bureau of Immigration will oversee visa issuance and entry-exit regulations. इसे penalties भी हैं. Penalizes foreigners entering without valid passport or other travel documents with imprisonment of 5 साल तक का imprisonment हो सकता है, 5 लाख रुपए का फाइन लग सकता है या दोनों दे सकते हैं. Power of arrest: police officers not below the rank of head constable can arrest without a warrant. See, without a warrant. Next is Panchayat Advancement Index (PAI). Ministry of Panchayati Raj introduced Panchayat Advancement Index to assess Gram Panchayat performance. There are 2.5 lakh Gram Panchayat in the country. Out of these data, around 2.16 lakh Gram Panchayat from 29 states have been assessed. Panchayat means an institution of self-government constituted under Article 243B for the rural area especially. अब concept है इसका, PAI is a multi-domain and multi-sectoral index that is intended to be used to assess the overall holistic development, performance and progress of पंचायत. सब कुछ देखेंगे, overall performance देखेंगे. अब aim क्या है, किस लिए इसको लेके आए हैं? To measure how well these grassroots institutions are achieving localized जो sustainable development goals हैं, उनको कितने अच्छे से आप अचीव कर पा रहे हैं. थीम है इसका, द इंडेक्स इवेल्युएट्स पंचायत बेस्ड ऑन 9 की थीम्स रिलेटेड टू लोकल डेवलपमेंट. अब वो 9 थीम है क्या क्या? थीम 1 पॉवर्टी फ्री एंड इनहेंस लाइवलीहुड पंचायत. थीम 2 इज हेल्दी पंचायत. थीम 3 इज चाइल्ड फ्रेंडली. 4 water sufficient. 5 clean and green. 6 self sufficient infrastructure. 7 socially just and socially secured पंचायत. पंचायत with good governance. And last women friendly पंचायत. कैटेगरीज हैं, अचीवर 0%, एस्पिरेंट 61.2%, परफॉर्मर 36% एंड फ्रंट रनर. गुजरात टॉप द रैंकिंग्स विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ पंचायत इन दिस कैटेगरी. फ्रंट रनर इसमें कौन है? गुजरात. अचीवर कौन है? कोई नहीं है. नो पंचायत इन इंडिया अचीव द अचीवर रैंक इन दिस ईयर्स असेसमेंट. एस्पिरेंट्स में 61.2% है. द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पंचायत फॉल अंडर दिस कैटेगरी. और परफॉर्मर्स में 36% है. A significant portion of पंचायत has achieved this moderate progress. Okay, so अभी ये जो है पॉलिटी वाला पार्ट फॉर द अप्रैल 2025, इसको हम अभी ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट सेशन में we'll meet taking with the international relations. Till then, keep studying, keep growing, and God bless you all. Thank you. Bye bye.